Good morning, everyone. Welcome back to Data Structures Theory session. In previous one, we have completed singly circular linked list, right? We have seen delete operations on that. So what we have covered till now under linked list? We started with basic understanding and operations, how it looks and how we maintain pointers. What is singly linked list? How how do we traverse? Once we know how to traverse, we can count total nodes. We can also search a value, right? Or we can display that entire list. And then we have gone for singly linked list operations like number of insert and delete operations. After that, we have seen singly circular linked list also. Now that's what we are done with. The next part that we want to have a look at is a doubly linked list and a doubly circular linked list. Then after, we will see what are the applications of linked list where we apply linked list fundamentals. So let's start with the doubly linked list. Now, as its name suggests, doubly, double. Now, if you focus on singly linked list, singly means there was only one link, and it was a forward link or the next link. So with that understanding, you can easily say that, okay, doubly linked list, which means there will be double link, two links. One will be forward, then the other one will be backward. Means one pointer is pointing to the next node, the other pointer is pointing to the previous node, right? So in a doubly linked list, you're gonna have two links, one to the previous one, the other one to the next one, next node. And this is how it looks, okay? A node in a doubly linked list is going to have three portions now. One will be your data part, and then there will be two pointers, one pointing to the next one and the other one pointing to the previous node. So next pointer and previous pointer. And how your linked list looks? This is how it looks. Every node has a next pointer pointing to the next node. So D1 का next pointer D2 को point करेगा, D2 का next pointer D3 को point करेगा, and if D3 is the last node, then its next pointer is null. Now this is similar to the singly linked list. अब additional क्या आएगा यहाँ पे? Okay, every node will have a previous pointer also. So D3 का previous pointer D2 को point करेगा, D2 का previous pointer D1 को point करेगा. Now if D1 is the first node, उसके आगे और कुछ नहीं है, then D1 का previous pointer जो है वो null रहेगा. So now you have both the directions pointer. आगे भी जा सकते हो, पीछे भी आ सकते हो. So that's your doubly linked list. Now what are the advantages and disadvantages of having a doubly linked list? Look, जब singly linked list था, तो आप एक साइड फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही ट्रैवर्स कर पाते थे. यू कैन नॉट ट्रैवर्स इट इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि बैकवर्ड पॉइंट ही मींस लिंक ही नहीं है आपके पास. सिंगली लिंक लिस्ट में अगर आप एक बार लास्ट नोड पे पहुंच जाते हो तो वापस नहीं आ सकते हो. Now that was the problem. तो हमने क्या किया कि सिंगली लिंक लिस्ट को सिंगली सर्कुलर बना दिया, so that लास्ट नोड से फर्स्ट नोड पे मैं आ सकूं. It gave you one more benefit कि भाई अगर nth नोड पे आप हो और n-1 पिछले नोड पे आपको जाना है, तो भी आप सर्कल मैनर में पूरा ट्रैवर्स करके वापस आ सकते थे. But that was the lengthy path. Now all those drawbacks are resolved here in the doubly linked list. You can traverse your doubly linked list in both directions, forward or backward. It reduces time for program execution, क्योंकि आप कभी भी पीछे आना चाहते हो आराम से आ सकते हो. You need not to traverse it again in a circular manner. It can represent other data structures also, like you can use doubly linked list
to create any other data structure like stack, queue, circular queue also, because you can traverse in both the directions. आगे पीछे कहीं भी जा सकते हो तो आप इसको यूज कर सकते हो. Even doubly linked list can be used like creating a tree. Now next unit we will see what is tree and how we can create a tree using linked list. तो doubly linked list को आप binary tree बनाने के लिए भी यूज कर सकते हो, right? Even graphs can also be stored using linked list. So when we see third unit, trees and graphs, at that time we will see how we can store those trees and graphs in terms of linked list. वहां पे हम linked list को कैसे यूज कर सकते हैं. Now what are the disadvantage? The first one, it needs more space. Next pointer तो रखा था, अब previous pointer भी अगर आपको रखना है तो additional space चाहिए. उस एड्रेस को स्टोर करने के लिए आपके पास और स्पेस होना चाहिए. So it requires extra space to store the additional pointer. And while we are manipulating all these lists, extra care should be taken to manipulate both the links. सिर्फ आप forward pointer update कर दो तो नहीं चलेगा. जब भी आप बीच में कोई नया नोड डालते हो या बीच से कोई नोड हटाते हो तो फॉरवर्ड लिंक तो मेंटेन करनी है लेकिन बैकवर्ड लिंक भी अपडेट करनी होगी. सो यू हैव टू मैनेज बोथ पॉइंटर्स हियर. एक पॉइंटर से काम नहीं चलेगा. सो you need to be careful while maintaining all the pointers here. Those are few disadvantages we can say when we go for doubly linked list and all. Well, if this is the doubly linked list, then let's have a look at operations. Now, how do you traverse? Traversal algorithm is same as singly linked list. Singly linked list में आपके पास forward pointer था. Same manner doubly linked list में भी forward pointer है. Yes? Start से आप शुरू करते हो tr. जब तक tr null नहीं हो जाता आप tr equals to tr points to next करोगे चलेगा. Right? So before insert, let's say if you want to display, your doubly linked list in forward direction, तो एकदम easy है. आप क्या करते हो, tr को start से initialize करोगे and then you are going to have while. Now we are writing display, मतलब हमको print करना है. What are we gonna print here? We will print data. और data print हो जाने के बाद tr को jump करवाओ next node पे. So tr points to next. दो statement है तो curly bracket. Now this is how you traverse your doubly linked list in a forward direction. कब तक यूज करोगे इसको, मतलब कब तक ट्रावर्स करोगे, जब तक tr नल नहीं हो जाता तब तक. So this is your forward display. Now as long as you have backward link in your doubly linked list, it is also possible to display your doubly linked list in backward direction. Okay, let me have BWD, backward direction also. Now which means you need to traverse it. While you are traversing, you are going to print your data because we want to print, we want to display. But what we want here, we want to traverse our linked list in a backward direction. मतलब tr को आप कहां पे जंप करवाओगे, प्रीवियस नोड पे, राइट? tr को आप प्रीवियस नोड पे जंप करवाओगे और जब तक tr नल नहीं हो जाता तब तक आप ट्रावर्स करोगे. लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि फॉरवर्ड मैनर में प्रिंट करना है तो tr स्टार्ट से
इनिशियलाइज करते हैं हम, टीआर को हम पहले नोड पे इनिशियलाइज करते हैं। बट अगर आपको बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रिंट करना है तो आप टीआर को लास्ट नोड से इनिशियलाइज करो, तभी आप बैकवर्ड डायरेक्शन में आ पाओगे। Now, do you know the address of last node? Do you know where is last node? क्या आपको पता है कि आपका लास्ट नोड कहां होगा? नो, हमें क्या पता है? We only have start node. तो प्रिंट करने के लिए आप पहले एक सिंपल ट्रावर्स करके लास्ट नोड तक पहुंचोगे। एक बार सिंपल ट्रावर्स करके लास्ट नोड तक पहुंच जाओ। अगर लास्ट नोड तक पहुंच गए तो आप वहां से वापस आ सकते हो एंड यू कैन प्रिंट योर डेटा इन अ रिवर्स मैनर। तो लास्ट नोड तक पहुंचना है, लुक यू वांट टू स्टॉप एट अ लास्ट नोड, तो आपका कंडीशन हो जाएगा टीआर पॉइंट्स टू नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू null. So this is how you can print your doubly linked list in a reverse manner. पहले एक बार ट्रैवर्स करके लास्ट नोड तक जाओ, वहीं पे रुक जाओ, and then you come back, and while you are coming back you will print your data. So these two are, we can say, the display operations. Two different display operations are possible on doubly linked list because we have forward as well as backward direction links. So forward printing, backward printing. So that also covers the traversal process, right? How do you traverse? Similar to singly linked list. How do you reverse traverse? पहले लास्ट तक पहुंचो, फिर वापस भी आ सकते हैं। Okay, so we know how to traverse. Then let's have a look at insert operations on, this is doubly linked list. Okay, so now we want to have a look at few insert operations on doubly linked list. We have covered multiple operations on singly as well as singly circular, so we'll be little bit faster in doubly. Again, you may go for any of these operations like insert first, insert last, insert at position, insert before, insert after, insert at, in sorted list and all. Not only these 6 operations, but इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में कुछ आता है आप कर सकते हो। You can also say insert before given address, तो भी चलेगा। Because let's say if you want to say कि भी कभी आपको ये लगता है कि थर्ड प्लेस पे बिठाना है, तो यू विल से इंसर्ट एट पोजीशन 3, राइट? कभी आप बोलते हो कि आई नो दैट आई हैव वैल्यू 3 इन माय लिस्ट, और वो 3 जो है उसके आगे एक नया डेटा डालना है, देन यू विल गो फॉर इंसर्ट बिफोर 3, right? Now what if you say, I know that I have multiple occurrences of 3 and I want to insert a new value before second occurrence of 3. Now second occurrence can be any occurrence, let's say nth occurrence of a given value. तो आप और एक फंक्शन बना सकते हो, insert before a given value with occurrence. कौन सा occurrence? So you can write that algorithm, you can write that function, code it and provide it. So this was one example कि भाई आप जो सोचो वो बना सकते हो. You can have other insert operations also. Now let's focus on few here. Just like always, we will go for insert first, last, and maybe we'll go for insert before. Okay, so let us see these 3 insert operations here on a doubly linked list.
इंसर्ट फर्स्ट लास्ट में हर बार करवाऊंगा बिकॉज इट्स काइंड ऑफ अ ट्रिगरिंग पॉइंट फॉर यू, जो आपके थिंकिंग प्रोसेस को ट्रिगर करता है. सिंगली में क्या सोचना पड़ेगा, डबली में क्या सोचना पड़ेगा, किस तरह से सोचना पड़ेगा. सो insert first, insert last will trigger your thinking process on a particular data structure. So let's have a look at it. Insert first. We want to insert a new node. एक नया node चाहिए. Available memory जो है उसके पास से लेके आओ. Algorithm लिखते हो तो avail. Program लिखते हो तो malloc. एक नया node मिल जाने के बाद आप data भी store कर दोगे. But when you go and maintain your pointers, you have to think about few cases. What if your linked list is empty? What if you do have existing nodes in your linked list? So there are two different cases which we need to handle. Once we have a new node, let's call it n. As soon as you have a new node, you can store your new value here. So what do you write? You simply say, okay, once I have a new node, in its data part, I'm going to save the given new value. Okay, so that's done. Now we need to think about how do we maintain the pointers. If it is case 1, you do not have any existing node, और जो node आप insert कर रहे हो वही first node है, वही last node है. doubly linked list में last node का next pointer null बनता है और first node का previous pointer भी null बनता है. अगर एक ही नोड है तो वही फर्स्ट नोड है, प्रीवियस नल कर दो. अगर एक ही नोड है तो वही लास्ट नोड है, नेक्स्ट भी नल कर दो. सो नए नोड का प्रीवियस और नेक्स्ट दोनों नल हो जाएंगे. एंड देन यू अपडेट योर स्टार्ट. सो व्हाट वी हैव डन हियर, इफ योर स्टार्ट is already null, then what we do is new node next pointer is gonna be null, new node previous pointer is also going to be null, and we update our start with new node. Now this is our case 1. In the else part, we are going to think about the second case. So let's have a look at second case. अगर second case जहां पे आपके पास already कुछ values है, means few nodes are already there, तो क्या करोगे? Well, नया node जो है आप first place पे डालते हो, then that new node next pointer should point to first node, existing first node. ये पहला स्टेप. हर बार नए नोड के पॉइंटर्स को पहले मैनेज कर लो, क्योंकि वो नई मेमोरी है, कहीं पे अफेक्ट नहीं करेगी. तो नए नोड के प्रीवियस पॉइंटर को नल कर दो, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट नोड नाउ. अगर वो फर्स्ट नोड बनेगा तो उसके आगे कुछ नहीं है. सो दैट्स योर सेकंड स्टेप. Then let us handle existing pointers. Existing first node जो है उसका previous जो already null था वो update होना चाहिए. It should point to the new node now. New node, third step. And once you are done with maintaining pointers, you can update your start. Fourth step. Right? So what we have done,
सबसे पहले नए नोड के जितने भी पॉइंटर्स है, लेट्स हैंडल इट. न्यू नोड नेक्स्ट और न्यू नोड प्रीवियस. न्यू नोड नेक्स्ट कहां पे जाएगा? एग्जिस्टिंग फर्स्ट नोड पे, स्टार्ट पे. नए नोड के प्रीवियस को क्या करना है? नल. देन लेट अस हैंडल एग्जिस्टिंग पॉइंटर्स. एग्जिस्टिंग फर्स्ट नोड जो था स्टार्ट, उसके प्रीवियस को अपडेट करना पड़ेगा. एग्जिस्टिंग स्टार्ट नोड मतलब फर्स्ट नोड जो है उसके प्रीवियस पॉइंटर, थर्ड स्टेप, it should point to the new node. And then we update our start, fourth step. So now we know that, okay, these are the 4 steps we have to perform. And once we do that, we are done. Once you complete it, give it a thought. Do I need to handle both the cases separately? या फिर दोनों को merge करके एक ही बार लिखूंगा तो चलेगा? Start equals to new node, start equals to new node. Same. New node previous null, new node previous null. Same. न्यू नोड के नेक्स्ट में स्टार्ट डालते हो और न्यू नोड के नेक्स्ट में नल डालते हो. इज इट सेम और नॉट? अगर स्टार्ट नल है तभी आप नल डालते हो, राइट? तो वो सेम है. न्यू नोड के नेक्स्ट में अगर मैं स्टार्ट लिख दूं तो चलेगा ना. स्टार्ट नल है तो नल आएगा, और स्टार्ट अगर कोई फर्स्ट नोड है तो वो फर्स्ट नोड आएगा. सो स्टिल वी कैन से बोथ दीज आर सेम. अब केस 1 में 3 स्टेटमेंट थे, केस 2 में आपके पास 4 स्टेटमेंट है. मतलब केस किसी ना किसी तरह से तो अलग बनेगा. सो एनी हाउ, या तो आप इस तरह से इफ एल्स लिखो, दोनों केस को सेपरेटली हैंडल करके पूरा कोड अलग लिखो, दैट्स वन वे. और व्हाट यू कैन डू इज, जो 3 कॉमन स्टेटमेंट है आपके, राइट, वो इफ एल्स के बाहर निकाल दो. और जो एक अलग से स्टेटमेंट बनता है, फॉर दैट ओनली यू राइट योर इफ एल्स. और ये केस कब बनेगा? स्टार्ट का प्रीवियस आपको कब मिलेगा? अगर स्टार्ट नल नहीं है तभी मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा. सो इफ स्टार्ट पॉइंट्स टू प्रीवियस, या तो फिर आप डायरेक्ट ये देख लो, इफ स्टार्ट इज नॉट नल तो उसका प्रीवियस मिलेगा जो आप अपडेट करना चाहते हो. सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, एंड लेट अस सी दैट प्रोसेस इन एल्गोरिथम हियर. So the same process, if avail is null, आपके पास मेमोरी ही नहीं है, overflow. Otherwise you are going to take a new node from avail को अपडेट करो, नए नोड का डेटा सेट करो, हो गया. Then you maintain your pointers. नए नोड के प्रीवियस को नल कर दो. नया नोड फर्स्ट नोड बनेगा तो उसका प्रीवियस हमेशा नल रहेगा. सो नए नोड के प्रीवियस को नल करो, नए नोड के नेक्स्ट में स्टार्ट डाल दो. अगर स्टार्ट नल है तो नल जाएगा, एग्जिस्टिंग नोड है तो वो जाएगा, नो प्रॉब्लम देयर. स्टार्ट को भी अपडेट करेंगे और स्टार्ट को रिटर्न भी करेंगे. अब हमें क्या करना है? स्टार्ट के प्रीवियस में नया नोड डालना है, बट दिस शुड बी बेस्ड ऑन if your start is not equals to null, अगर स्टार्ट नल नहीं है तो आपको उसका प्रीवियस मिल सकता है जो आप अपडेट करोगे. सो स्टेप नंबर 7 मस्ट बी अंडर इफ. हाँ, अल्गोरिदम में आप विदाउट इफ लिख दो, इट्स ओके, इट कैन बी कंसिडरेबल.
अगर प्रोग्राम में आप विदाउट इफ लिखते हो तो जब वो केस बनेगा तो रन टाइम एरर आएगी. So in your program, this if must be there. Algorithm में लिखो best, नहीं लिखते हो चलेगा. Because as long as you are look, if नहीं लिखते हो चलेगा. ये statement तो लिखना पड़ेगा. Okay, do not omit this previous pointer maintenance part. So it must be there. Now in some books you will find this if condition. In some books you may not find this if condition, but it should be there when you implement this operation. So this is your insert first. Let's look at insert last. Same way, नया node उठाओ, data set करो, and then you have a look at what is the case. What if your start is null? And what if your start is pointing to maybe few nodes in a linked list? When you create a new node, if your start is null, तो जो भी नया नोड है वही फर्स्ट नोड वही लास्ट नोड स्टार्ट को अपडेट करना पड़ेगा. इट्स काइंड ऑफ इंसर्ट फर्स्ट जो हमने ऑलरेडी देखा. लेकिन अगर आपके पास एग्जिस्टिंग नोड है, few nodes are there already, and जो न्यू नोड बनता है वो आप लास्ट में डालना चाहते हो. Okay, you want to insert your new node in the last place. तो नया नोड लास्ट नोड बनेगा तो उसका नेक्स्ट तो नल हो जाएगा, लेकिन उसका प्रीवियस जो है वो एग्जिस्टिंग लास्ट नोड को पॉइंट करना चाहिए. Now how do you have existing last node? ट्रावर्स करना पड़ेगा. ट्रावर्स योर ट्री, सॉरी ट्रावर्स योर लिंक लिस्ट एंड रीच अप टू द लास्ट नोड. एक बार लास्ट नोड तक पहुंच जाते हो, देन यू हैव द एड्रेस ऑफ लास्ट नोड. ओके, अगर लास्ट नोड का एड्रेस है तो नए नोड के प्रीवियस पॉइंटर में आप टीआर को डालोगे और टीआर के नेक्स्ट में आप नए नोड को डालोगे. राइट? स्टेप 1, स्टेप 2 and step 3. Need not to update start here. नया नोड लास्ट में जाता है तो स्टार्ट तो अपडेट होगा ही नहीं. So that's all. In this case we only have to perform 3 steps. Both cases are different because एक केस में स्टार्ट अपडेट होता है, दूसरे केस में स्टार्ट अपडेट नहीं होता है. So we cannot merge both these cases. So what should be the process? If your avail is null, no memory available, overflow. Otherwise we take a new node from avail, अपडेट को avail को अपडेट करेंगे और नए नोड के डेटा को सेट करेंगे. Then let's go and maintain pointers. Anyway, the new node is the last node, तो उसका नेक्स्ट तो नल होगा ही होगा, पक्का पता है. Then let's handle the special case. अगर आपके पास एक भी नोड नहीं है, if your start is null, तो क्या होगा? In that case नए नोड का प्रीवियस भी नल बनेगा and you are going to update your start. Then you return. If your start is not null, तो आपके पास कुछ नोड है जिसको आप पहले ट्रावर्स करोगे. Let's take PTR and let us traverse it. लास्ट नोड पे रुक जाना है, so PTR next not equals to null. लास्ट नोड पे रुक जाएगा. ट्रावर्स करने के लिए PTR equals to PTR next. So when this while loop terminates,
योर PTR विल बी पॉइंटिंग टू द लास्ट नोड. अगर वो लास्ट नोड पे है तो वेरी सिंपल, एग्जिस्टिंग लास्ट नोड के नेक्स्ट में नए नोड को डालो और नए नोड के प्रीवियस में एग्जिस्टिंग लास्ट नोड को डालो, PTR. योर प्रोसेस इज ओवर. यस यस. नो लुक, बाय डिफॉल्ट नए नोड का नेक्स्ट और प्रीवियस नल नहीं होगा. इट डिपेंड्स. अगर आप मैलॉक करते हो तो नल नहीं होगा, अगर आप कैलॉक करते हो तो नल होगा. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैलॉक एंड कैलॉक? नई मेमोरी, नए नोड के लिए नई मेमोरी हम कैसे लेंगे? या तो मैलॉक यूज करके या तो फिर कैलॉक यूज करके. नाउ देयर आर टू डिफरेंसेस बिटवीन मैलॉक एंड कैलॉक. The obvious difference between malloc and calloc is number of parameters. malloc को एक पैरामीटर चाहिए, calloc को दो पैरामीटर चाहिए. malloc जो है वो ये बोलता है कि मुझे ये बताओ आपको कितने बाइट्स चाहिए, सिंगल पैरामीटर, टोटल नंबर ऑफ बाइट्स. जबकि calloc ये बोलता है कि आपके पास कितने एलिमेंट हैं, वो एलिमेंट की साइज कितनी है. मल्टीप्लीकेशन मैं कर लूंगा. Okay, that's how calloc works. Now that is obvious difference which you can see. Then the other difference, second difference, malloc function सिर्फ मेमोरी allocate करके दे देता है आपको. अगर वहां पे कोई गार्बेज वैल्यू है तो वो ऐसे ही रहेगी. जबकि calloc फंक्शन क्या करेगा, मेमोरी allocate करने के बाद उसको इनिशियलाइज करेगा डिफॉल्ट वैल्यू से. अगर न्यूमेरिक है तो डिफॉल्ट वैल्यू इज 0, अगर अल्फाबेट है तो न्यूमेरिक वैल्यू इज नल कैरेक्टर. सो इफ यू यूज कैलॉक तो नए नोड की प्रीवियस नेक्स्ट नल होंगे, अगर आप मैलॉक करते हो तो नहीं होंगे. नाउ टू हैंडल दैट पार्ट, टू बी एट अ सेफर साइड, हम एक्सप्लिसिटली उसको नल करेंगे. Clear? Okay. Any more queries? So this is insert first and insert last. Let us see insert before also. Insert at position में आप पे छोड़ता हूं. क्विकली अगर आपको एल्गोरिदम दिखाना हो तो मैं ये बोलूंगा कि आप क्या करोगे, पोजीशन 1 को स्पेशल केस मानोगे क्योंकि वो हो जाएगा इंसर्ट फर्स्ट. अगर यूजर ने पोजीशन 1 बोला तो वो हो जाएगा इंसर्ट फर्स्ट, जहां पे स्टार्ट अपडेट होना चाहिए. सो इट्स अ स्पेशल केस. अगर पोजीशन 1 नहीं है तो आप क्या करोगे, तो आपको ट्रैवर्स करना पड़ेगा अप टू द पोजीशन. सो TR ले लो, एक काउंटर भी ले लो पोजीशन काउंट करने के लिए, एंड देन यू ट्रैवर्स. काउंटर प्लस प्लस करते जाओ. नाउ सिंगली लिंक लिस्ट में अगर आपको याद हो तो हमने पोजीशन -1 तक काउंटर -1 तक ट्रैवर्स किया था. यहां पे भी हम वही करेंगे. वी गो अप टू पोजीशन -1 सो दैट हम जो नया नोड डालते हैं वो कुछ इस तरह से बने कि वी आर इंसर्टिंग इट आफ्टर. मेरा PTR जहां पे भी है उसके बाद, उसके आफ्टर में नया नोड डालना है, एंड दैट विल बिकम इजी. अगर आप अप टू पोजीशन ट्रैवर्स कर लेते हो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज यहां पे हमारे पास प्रीवियस पॉइंटर है, तो प्रीवियस नोड का भी एड्रेस आपको मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम देयर. But once you reach, you just have to maintain your pointers. Draw it and then think what pointers you should update. हर बार ये याद रखो, नए नोड के पॉइंटर को पहले मेंटेन कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एग्जिस्टिंग नोड के पॉइंटर्स को आप बाद में सोचोगे. Similar kind of thinking we have to do here in insert before.
insert before. So let's think. नया नोड डालना है नई वैल्यू के साथ बिफोर सम एग्जिस्टिंग वैल्यू. ओके, अब यहां पे केस कुछ इस तरह से बनेंगे. लेट्स से वी हैव अ doubly linked list. What if user gives existing value 2? Insert first हो जाएगा. Correct. What if user gives you existing value maybe 4 or 6 or 8? So this becomes insert in between somewhere and we need to find those values और उसके आगे नया node insert करेंगे. So we need to handle this case. How do we handle it? पहले हम वो value तक traverse करेंगे. We have to traverse up to that value. And what if user gives 10? Not possible because value not found. लेकिन value not found कब बोल सकते हो आप? अगर आप पूरा लिस्ट ट्रावर्स कर लेते हो फिर भी आपको वो वैल्यू नहीं मिलती, then only you can say value not found. Anyhow, you have to traverse it. ट्रावर्स करेंगे तभी पता चलेगा 4 6 8 में से कुछ मिला या नहीं. अगर नहीं मिला तो वैल्यू नॉट फाउंड लास्ट में. सो हियर वी हैव अ स्पेशल केस जहां पे फर्स्ट नोड में ही एग्जिस्टिंग वैल्यू मिल जाती है. If your start data is the existing value, then it is a special case and it becomes insert first. Otherwise, what you have to do is you have to traverse. अब स्टार्ट से ट्रावर्स करो या नेक्स्ट नोड स्टार्ट के नेक्स्ट से ट्रावर्स करो, कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि पहले नोड का डेटा तो हमने ऑलरेडी चेक कर लिया है ना. अगर मैं सेकेंड नोड से स्टार्ट करता हूं तो चलेगा, नो प्रॉब्लम. लेट्स गो फ्रॉम स्टार्ट ओनली. व्हाट वी डू इज वी गो फॉर व्हाइल लूप. और हम क्या करेंगे, जब तक एग्जिस्टिंग वैल्यू नहीं मिलती है तब तक हमें ट्रावर्स करना है. व्हाइल tr डेटा इज नॉट इक्वल्स टू एग्जिस्टिंग वैल्यू, वी वांट टू ट्रावर्स tr equals to tr points to next. बट अगर वो एग्जिस्टिंग वैल्यू आपके लिंक लिस्ट में ही नहीं है तो बीच में कहीं ना कहीं tr नल हो जाएगा. सो यू एडिशनली यू ऑल्सो नीड टू हैंडल दैट केस. इफ tr इज नॉट इक्वल्स टू नल, ओनली देन यू चेक योर tr डेटा. tr डेटा भी अगर एग्जिस्टिंग वैल्यू नहीं है देन यू ट्रावर्स, राइट? So this is how we are going to traverse. एक ही स्टेटमेंट है फिर भी मैं काली ब्रैकेट कर रहा हूं. It's okay. Now once you complete this traversal process, you have to check if your tr is null. tr null हो गया मतलब डेटा मिला ही नहीं, वैल्यू नॉट फाउंड, right? Otherwise you can say that you are going to insert a node, नया नोड. अब नया नोड पहले से ले लिया, नया नोड का डेटा भी सेट कर लिया, मान लेते हैं. Now what we need to do now is, let's say if user says insert before 6. So when you have started traversing your list, 2 double equals to 6,
नो, आगे बढ़ेंगे. 4 डबल इक्वल्स टू 6, नो, आगे बढ़ेंगे. 6 डबल इक्वल्स टू 6, यस, वी विल स्टॉप हियर. यहां पे आप रुक जाओगे. So your TR is pointing to a node where you have that existing value, and what you need, you want to need you want to insert a new node before that. इसका मतलब ये हुआ कि आपको नया नोड जो है उसके आगे डालना है. You are going to update these pointers. पॉइंटर क्या बनने चाहिए? नए नोड के नेक्स्ट को आप TR पे लेके जाओ, नए नोड के प्रीवियस को आप TR के आगे जो नोड है वहां पे लेके जाओ. कैसे मिलेगा एड्रेस? TR प्रीवियस से आपको आगे वाले नोड का एड्रेस मिल जाएगा. देन TR के आगे जो नोड है उसके नेक्स्ट पॉइंटर को अपडेट करो, वो नए नोड पे आना चाहिए. और TR का प्रीवियस जो है उसको भी अपडेट करो, वो नए नोड पे आना चाहिए. मतलब 4 पॉइंटर्स आपको अपडेट करने हैं. कौन कौन से? We always go for new node pointers first, right? So new node, next, and new node previous. उसके बाद TR के आगे जो नोड है, मतलब TR points to previous, जो भी नोड है उसका नेक्स्ट अपडेट करना है. और लास्ट में TR का प्रीवियस अपडेट करना है. सो ये 4 वैल्यू हमें अपडेट करनी है. अब TR का नेक्स्ट मतलब सॉरी न्यू नोड का नेक्स्ट TR पे जाएगा, न्यू नोड का प्रीवियस TR के प्रीवियस नोड पे जाएगा, एग्जिस्टिंग दोनों नए नोड पे आएंगे. So we have to maintain these 4 pointers here. ये समझ में आया? This one, न्यू नोड प्रीवियस, ठीक है. न्यू नोड प्रीवियस, दिस पॉइंटर वो कहां पे जाना चाहिए? Look, I'm saying when I draw this line, okay, when I draw this arrow, it is pointing to entire node. Remember, it should point to entire node. When you say node, you have 3 members: data member, next pointer member, and previous pointer member. लेकिन जब हम एड्रेस की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि एड्रेस किसका है? नोड का एड्रेस है. ओके. अगर आप लिंक लिस्ट की बात करते हो तो ये दोनों पॉइंटर जो है वो नोड को पॉइंट करेंगे. मतलब मान लो कि आपका एड्रेस 2030 और यहां पे है 5080. तो पहला नोड जो आपको दिख रहा है उसके नेक्स्ट पॉइंटर में आप क्या डालोगे? नेक्स्ट नोड का एड्रेस 5080. और जो सेकंड नोड आपको दिख रहा है उसके प्रीवियस पॉइंटर में आप प्रीवियस नोड का एड्रेस डालोगे. So it is pointing to entire node. It is not pointing to the member of the node.
सो सिंपली व्हाट आई वांट टू से इज, ये प्रीवियस पॉइंटर जो है जब मैं एरो इस तरह से बनाता हूं तो वो इसको पॉइंट नहीं करेगा. It is not pointing to this next part, it is actually pointing to entire node. Okay, so अगर मैं ये बोलता हूं कि नए नोड के प्रीवियस को मुझे आगे वाले नोड पे लेके जाना है, तो आगे वाले नोड का एड्रेस कहां से मिलेगा? टीआर के प्रीवियस में आगे वाले नोड का एड्रेस है, तो टीआर के प्रीवियस में जो भी एड्रेस है मैं डायरेक्ट वो एड्रेस न्यू नोड के नेक्स्ट को देता हूं. This is your new node. Okay. This is your TR. If your new node address is 3000, तो सबसे पहले हम नए नोड की जो भी पॉइंटर्स हैं उसको अपडेट करते हैं. सो नए नोड के पॉइंटर को अपडेट करने के लिए यू विल स्टार्ट फ्रॉम दिस. इट शुड पॉइंट टू दिस नोड. मतलब क्या चाहिए आपको? 5080 चाहिए. और वो कहाँ से मिलेगा? डायरेक्ट टीआर से. ठीक है. नए नोड के प्रीवियस में आपको क्या डालना है? इट शुड पॉइंट टू द प्रीवियस एड्रेस 2030. वो कहाँ से मिलेगा? और वो क्या है एक्चुअली? टीआर का प्रीवियस. सो वी ब्रिंग दैट 2030 वैल्यू हियर. उसके बाद आप क्या करते हो? एग्जिस्टिंग लिंक जो है उसको अपडेट कर दोगे. मतलब ये दो वैल्यू जो थी वो हटा दोगे और वो दोनों जगह पे आप क्या डालोगे? नए नोड का एड्रेस. सो लिंक बन जाएगी कुछ इस तरह से. So when you have any kind of confusion, always what you do, draw your linked list and think about how and where your arrows are going. उसके बाद भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो कुछ इस तरह से एड्रेस अज्यूम कर लो. हर एक नोड का एड्रेस अज्यूम कर लो, कुछ ना कुछ वैल्यू, एंड देन सोचो कि कौन सा एड्रेस कहां जाएगा. All your confusions will be removed when you go through this process. Okay, so that was the insert before process. Now let's have a look at algorithm. जो हमने सोचा क्या वही algorithm है या algorithm में हम कुछ अलग कर सकते हैं? मतलब जो हमने सोचा था क्या इसमें हम कुछ change कर सकते हैं? Let's think about it. So we'll see that directly on the algorithm. यू वांट इंसर्ट अ न्यू नोड, तो नया नोड चाहिए. अगर अवेल के पास मेमोरी नहीं है तो ओवरफ्लो, वरना आप अवेल के पास एक नोड लोगे, अवेल को अपडेट करोगे और नए नोड का डेटा सेट कर दोगे. ये तो करना ही है. नाउ देन ओके, देन व्हाट वी डू इज वी चेक अ स्पेशल केस. इफ योर स्टार्ट डेटा इज एक्सिस्टिंग वैल्यू तो वो बन जाता है इंसर्ट फर्स्ट. इंसर्ट फर्स्ट में जो किया था सेम हियर. न्यू नोड नेक्स्ट इज स्टार्ट, न्यू नोड प्रीवियस इज नल. एग्जिस्टिंग स्टार्ट नोड के प्रीवियस को अपडेट करो न्यू नोड एंड अपडेट योर स्टार्ट. दिस शुड बी अंडर इफ. अगर स्टार्ट नल है तो क्या, लेकिन वो नहीं बनेगा बिकॉज यू हैव ऑलरेडी चेक स्टार्ट डेटा. तो यहां पे कोई इफ लिखने की जरूरत नहीं है. इंसर्ट फर्स्ट में इफ लिखा था लेकिन यहां पे जरूरत नहीं है. एंड वी रिटर्न. अगर ये वाला केस नहीं बना, what if your existing value is not there in the start node, तो आप आगे उसको सर्च करोगे. so you need to traverse. let us traverse from the second node directly and
we will go and traverse while loop. जब तक आपको डेटा एक्सिस्टिंग वैल्यू नहीं मिलता है तब तक आप ट्रावर्स करते हो. एडिशनल कंडीशन, टीआर शुड नॉट बी नल. जब ये ट्रावर्सल प्रोसेस खत्म होगा तो आप चेक करोगे, अगर टीआर नल हो गया तो वैल्यू नॉट फाउंड. इफ टीआर इज नॉट नल तो टीआर ऐसी जगह पे है जिसके आगे आप नया नोड डालते हो. 4 पॉइंटर मेंटेन करने हैं. न्यू नोड के नेक्स्ट और न्यू नोड के प्रीवियस को मेंटेन करो पहले. एक जाएगा पीटीआर पे और एक जाएगा पीटीआर के प्रीवियस पे. उसके बाद एग्जिस्टिंग नोड जो है उसके पॉइंटर्स मेंटेन करते हैं. तो प्रीवियस नोड का नेक्स्ट अपडेट करेंगे और करंट नोड का प्रीवियस अपडेट करेंगे. दोनों जाएंगे नए नोड पे. राइट? So the same process which we thought of, and at the end we return start. So that's all for today. We will stop here. We have started with doubly linked list. What is doubly linked list? How doubly linked list looks? Additional एक पॉइंटर भी आएगा नोड के अंदर, मतलब नोड के 3 मेंबर हो जाएंगे, एक डेटा पार्ट और 2 पॉइंटर्स. जब आप प्रोग्राम में स्ट्रक्चर बनाते हो तो स्ट्रक्चर के अंदर 3 मेंबर बनेंगे, इंटीजर डेटा और बाकी 2 पॉइंटर वेरिएबल स्ट्रक्चर के ही, पॉइंटर नेक्स्ट, पॉइंटर प्रीवियस. Now then, whenever we want to display, we can go for 2 different display operations, forward and backward. अगर दोनों डिस्प्ले सही है तो आपका पूरा लिंक लिस्ट सही है. Do not rely on a single display operation. फॉरवर्ड डिस्प्ले सही है मतलब आपने फॉरवर्ड पॉइंटर मैनेज किए. व्हाट अबाउट रिवर्स, बैकवर्ड पॉइंटर? अगर रिवर्स डिस्प्ले सही है तभी आप बोल सकते हो कि आपके बैकवर्ड पॉइंटर भी सही है. सो व्हेन यू वांट टू टेस्ट कि भाई आपका लिंक लिस्ट सही है या नहीं, आप दोनों प्रिंट करोगे और चेक करोगे. After that, we have seen few insert operations like insert first, insert last, insert before. You can think about other insert operations also. And that was the today's content. I'll upload this PPT so you'll have all those algorithms. And in the next lecture, we are going to have a look at delete operations on doubly linked list. Well, that's all. Thank you. Thank you for being part of this session here. See you in the next one.